आप लोग का कुछ सवाल है तो हम ले सकते हैं अभी। As per reports from the media, is Gautam Adani who wouldn't turn up on the day of Rath Yatra, and there were speculations when the main organizer he said that not enough devotees have come, so Rath Yatra is postponed for a day. So we infer that maybe they are mentioning Gautam Adani who couldn't be there in Rath Yatra on 27th. Acha. But are you pressing charges against him? How will I press charges against Gautam Adani? I am saying this is what has been speculated in the media, which has been reported locally, that after the deliberations or the statement of the administrator, he mentioned that not enough devotees have come, and this is as per the decree of God, so Rath Yatra will start the next day. Okay, thank you. Hello. आप लोग Sir, I have a question. You said that the number of deaths, the number is not factually correct. I think you implied something like that. Are you saying that the government saying 3 people, it could be more than 3? Yeah, so on the day of Rath Yatra, there were around 700 injured, and as per reports, around 7 were dead. The government has failed to accept this and said that nothing has happened, it is a small event. And second day, the collector himself, he admitted there were 3 deaths, and he was transferred immediately after that. There was a new collector who came into place, Chanchal Ranaji. After the collector admitted that there were 3 deaths, had he not given the statement, the collector and SP, we could have not known whether there were any deaths or not, and they're trying to hush it up. This is what we can infer. But locally, the media reports suggest that there has been much more casualty, which the government is not coming clean on. सर किस तरह की जांच की आप लोग मांग कर रहे हैं, और क्या आपने ये अपनी चीजें जो है मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाई हैं? क्योंकि हम चाहते हैं एक कोर्ट मॉनिटर जुडिशियल इंक्वायरी एक जज के नेतृत्व में हो, एंड ये 10 दिन नीलाद्री विजय जब खत्म होगा 10 दिन के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूट हो। ये हमारा डिमांड है, क्योंकि हम इस सरकार के जो SITs पे भरोसा नहीं रखते हैं, एंड CBI भी वैसे ही। तो हम चाहते हैं कोर्ट मॉनिटर्ड एक सिटिंग जज के चेयरमैनशिप में एक जांच हो, कोर्ट मॉनिटर्ड जुडिशियल इंक्वायरी हो। ये हम लोग का डिमांड है। Sir, here, sir. Sir, after the stampede incident had taken place in Bengaluru, there was an act which was being proposed by the state government there to control over the crowd. Do you believe that a similar kind of law should also be implemented in the state of Odisha as well? Because Rath Yatra takes place every year, large number of devotees also come there. So do you think that there needs to be some kind of an act or a law to control over the crowd in such kind of events? See, the difference between what happened in Karnataka and Puri is Karnataka was an unplanned event which happened within a day or something like that. Puri Rath Yatra is 1200-year-old tradition, and we have done it during the COVID pandemic time as well. This is what we're trying to highlight, and we know exactly the number of people who would come, the arrangements, and we've been reviewing this throughout. I'm part of this state level disaster the calamity meeting also. The AI controlled drones and the CCTV cameras. Why was it given to a company called IG Drone? We don't know. The main issue was they turned the festival, the holy festival, into an event management, and they made it a party-specific program, which is different, and there should not be any pardon for them. They have to apologize and resign immediately. But an act is fine. But this is something which we have been doing for 1200 years, and this is not something that they didn't know what the kind of people are going to come, what is the crowd swell, what are the emotions involved in this particular activity. So they are completely responsible for what happened in Rath Yatra. सर ये जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये कह रहे हैं ऑफिशियल्स की 2 ट्रक्स कुछ पूजा की सामग्री के साथ आई, जिसकी वजह से पैनिक हुआ। ये कारण बता रहे हैं कि स्टैम्पीड शुरू इसलिए हुई कि 2 ट्रक्स घुस आई थी। और दूसरा जो विक्टिम्स हैं और उनके परिजन जो जिनकी जान चली गई, वो पुअर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की ओर भी इशारा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार उसमें भी, चाहे वो दमकल की गाड़ियां हों या जो SWAT टीम्स होती है इमरजेंसी की, मेडिकल टीम्स, वो भी मुहैया कराने में, इंतज़ाम करने में विफल रही? ये पूरा विफलता है। 2 ट्रक जो आए तो प्रशासन कहाँ गई थी, पुलिस कहाँ गए थे, उनके इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम कहाँ गए थे? जो जब ये क्राउड सेलिंग हुआ, स्टैम्पेड हुआ, उस वक्त कोई भी नहीं था उनकी मदद करने के लिए। जो
डिवोटीज है वही लोग उनको उठा के हॉस्पिटल लेके गए एंड वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए उनको वो मदद किए। तो अगर आपको पता है कि इतने लोग आ रहे हैं तो क्या होता है जब रथ यात्रा कंप्लीट होता है तो जो क्राउड स्वेल होता है आपको पता चल जाता है कि ये सब क्राउड भुवनेश्वर या कटक यहाँ से ट्रैफिक बढ़ जाता है। एंड ये भुवनेश्वर से पुरी तक पूरा जो सीसीटीवी मैंने बताया कि एआई कंट्रोल सीसीटीवी, उसका काम क्या है? क्राउड सोल को प्रेडिक्ट करने के लिए एंड बंदोबस्त इंतजाम करने के लिए। देयर वाज नो वन एट द स्पॉट, देयर वाज नो रिस्पॉन्डर्स, देयर वाज नो पुलिस, देयर वाज नो एडमिनिस्ट्रेशन, एंड बिकॉज द टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी इज नॉट इन टू प्लेस, देयर वर नो सर्विटर्स ऑल्सो। बनी नहीं है, 1 साल से नहीं बनी है, जब से ये सरकार है बनाए ही नहीं ये लोग। कारण प्रायोरिटी में नहीं है। दे वांट टू डू एवरीथिंग थ्रू देयर कैडर्स, they don't want to use leverage the temple committee which is a tradition। उनका सर्वेटर सेवक होते हैं, वो लोग वार्न करते हैं कि ये इस टाइम में ये हो रहा है, ये आप डिस्ट्रीब्यूट करो, वो बनी ही नहीं है अभी तक। एंड ओनली खाली अपने कैडर्स अपने कार्यकर्ता को पास देते हैं, उन्हीं से परिचालना करना चाहते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कंप्लीट फेलियर एंड इट्स अ मैन मेड डिजास्टर। कोई भी जान जाना बहुत दुख की बात है एंड इतने जान जाना वो भी रथ यात्रा के टाइम में। This is something which could have been easily avoided, but the main reason is they were more interested in अपना जो मिनिस्टर को मैनेज करना, लीडर्स को मैनेज करना, ये सब चीज़ में पुलिस का पूरा व्यवस्था वहीं पे था, ध्यान था उनको वीवीआईपी को मैनेज करना। उनके प्रभु जगन्नाथ के लिए कोई आस्था नहीं है, ना ही भक्तों के लिए कोई आस्था है। ये पूजा कमेटी की जो बात आप कह रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि आपने इससे पहले भी कहा कि उनकी मीटिंग नहीं हुई, अब आप कह रहे हैं कि उसको कंस्टिट्यूट ही नहीं किया गया पिछले 1 साल में, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि वो उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। तो फिर आपको क्या लगता है कि 1 साल, क्योंकि सबको पता था इस वक्त रथ यात्रा होनी है, कमेटी जो है वो प्रोएक्टिव हमेशा से रही है, क्योंकि ये पुरानी ये यात्रा है, एक भव्य यात्रा निकलती है, वहाँ लोगों की भी भीड़ उसी तरह से रहती है, तो फिर क्या कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं सरकार ने उस तरह से नहीं किया, कमेटी नहीं बनाई, क्या कुछ सरकार की मंशा थी फिर? देखिए, हर 2 महीने में एक बार उन लोगों को बैठना चाहिए, कमेटी को, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, मगर वो तो कंस्टिट्यूट हुआ ही नहीं, कैसे बैठेंगे? फिर भी ये लोग, वी मस्ट एडमिट, दे हैड टेकन प्रिकॉशनरी मेजर्स, दे मेट अगेन एंड अगेन, सेवरल टाइम्स दे सेट टुगेदर, but to no avail at all. Everything was fine till Thursday. But come Jagannath's Rath Yatra, on that day, certain things got out of control totally. When the party workers started thronging in there, taking over the entire reign of control. So, this is where the lacuna lies. And कोई भी वहाँ जाके किसी को डिक्टेट करे, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। 154 साल पहले ऐसा एक बार हुआ था। ये जो हुआ सेकेंड डे, जो स्टैम्पेड होके 3 आदमी मारे गए, ऐसा हुआ था 154 साल पहले, यानी कि 1869 में हुआ था। राइट, इन 1869 2 persons वर किल्ड। ये जो रथारूढ़ होते वक्त गुंडीचा मंदिर के सामने ऐसा एक कुछ इंसिडेंट हुआ था, 2 आदमी मारे गए थे। 150 साल से भी ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ अनटवार्ड इंसिडेंट कभी हुआ नहीं था। ये लोग कितना इनसेंसिटिव होंगे इससे पता लगता है। काका जी, मेरा सवाल आपसे है, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, मुख्यमंत्री ने इसको लेकर एक्शन लिया है, कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है, हटाया गया है, इसके अलावा जांच कमेटी बनाई गई है, फिर आपको क्यों लगता है ये फिट केस है कि इस्तीफा देना चाहिए? दूसरा, आपने कर्नाटक का जिक्र किया है, कर्नाटक के भगदड़ से ये मामला कैसे अलग है? देखिए, मैं कर्नाटक के बारे में यही बताया कि कर्नाटक जो इवेंट था वो एक दिन पहले डिसाइड होके जो क्रिकेट बोर्ड ने ऑर्गेनाइज किया था, या फिर जो भी स्पेकुलेशन है, दैट वाज ए इवेंट मैनेजमेंट एक्टिविटी। पूरी महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा इवेंट नहीं है, ये फेस्टिवल है। हमें पता है कि 10 लाख से ऊपर लोग आते हैं यहाँ पे, एंड हम इसलिए बोल रहे हैं कि रिज़ाइन करना चाहिए क्योंकि वो कलेक्टर को मतलब ट्रांसफ़र किए एंड एसपी को ट्रांसफ़र किए, डीसीपी को सस्पेंड किए। इज़ दैट इनफ? ये प्रभु जगन्नाथ का रथ यात्रा की बात करें, ये काफ़ी है। इतनी बड़ी घटना जो मेरे साथी बोल रहे हैं 154 साल में पहली बार हो रहा है, तो ये क्या जिम्मेदारी लेने की उनका नहीं बनता है?
हम चाहते हैं कि कुछ एक्शन ले ताकि प्रभु जगन्नाथ हमें खुशी से रहने देंगे, कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। एंड जो मैनेजिंग टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के जो बात कर रहे थे, इसमें ये बोल रहा हूँ, जो हमारी महाराज हैं वो भी लिखे थे कि गजपति महाराज जी ये सरकार को बार बार लिखते आ रहे हैं कि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का आप गठन करो। एंड वो मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, लेकिन कोई उनका कार्रवाई नहीं लिया गया। एंड ही हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली वार्निंग दिस। गजपति महाराज जी का भी ये स्टेटमेंट था कि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी बनाओ आप। ये सब चीज़ आप देखोगे तो फिर हिंट साइड ये लगता है कि लापरवाही है। दे ट्राई टू यूज दिस एंड एन इवेंट मैनेजमेंट, पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट टू cater to the VIPs, VVIPs and the industrialist friends, all the ministers, and they got, you look at the cordon passes, whom it was issued, 5,000, can you believe it? वो इनर पेरिफेरी में 5,000 पासेस डिस्ट्रीब्यूट किए, पुलिस को 4 घंटा लगा उसे वेरीफाई करने के लिए। कोई भी देखो उठ के आता था पास से। हमारे लीडर्स भी गए थे, वी नेवर न्यू कि ये कौन है, कहाँ से है, इसको पास कहाँ मिला। एक छत्तीसगढ़ के एमएलए का गाड़ी पूरा मंदिर के अंदर तक चला गया। हम लोग 3 किलोमीटर चल के जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। ये व्यवस्था था। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस इज मैन मेड। एंड मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, हम चाहते हैं वो इस्तीफा दे इसके लिए। ଟିକେ ଖାଲି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ବାଇଟ୍ ଦେବ। ହଁ ତାଙ୍କୁ ପରେ ଆମେ କଥା ହେଇଯିବା। थैंक यू सो मच।